مجھے ایک صوفی شاعر کے مزار پر جانا ہے، 18ویں صدی کے ایک عظیم پنجابی شاعر وارث شاہ کے مزار پر، جنڈیالہ شیر خان۔ وارث شاہ کو پنجاب کا شیکسپیئر کیوں کہتے ہیں؟ ہیر رانجھا کی داستان وارث شاہ کے قلم ہی سے امر کیوں ہوئی؟ کیا ہیر رانجھا کی داستان دراصل وارث شاہ اور بھاگ بھری کی کہانی ہے؟ ہیر وارث شاہ میں ایسا کیا ہے جو پنجاب کا احساس بن گیا، کرافٹ کا کمال بن گیا؟ اگر جرمنی میں گوئٹے، انگلینڈ میں شیکسپیئر، ہندوستان میں کالیداس اور غالب ہیں، تو پنجاب میں وارث شاہ ہیں۔ یار 100 والے دی 100 والے انٹرچینج پر اکثر ریزگاری پکڑا دیتے ہیں، ایک تو روپے کی قدر کم ہے اور پھر انٹرچینج والے اسے مزید گرا دیتے ہیں۔ یہ کہنا ہے رشید صاحب کا۔ یار کتے پرچی ہی نہ پڑھا دیں۔ جنڈیالہ کا راستہ پوچھنے اترا ہوں، نیویگیشن پہ مجھے اعتبار نہیں ہوتا۔ یار جنڈیالہ کدھر ہے گیا؟ جنڈیالہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شہر کے اندر سے گزرنے کی بجائے موٹر وے سے جانا چاہیے تھا، اس سڑک پر آنا ہی نہ پڑتا۔ کاش میں نے نیویگیشن پر ہی اعتبار کیا ہوتا۔ اس شہر میں اینٹیں بنانے والے بھٹے بہت ہیں۔ سر جتنے بھٹے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ پورے لاہور کو اینٹیں یہیں سے سپلائی ہو رہی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں پوری ایک لائن ہے، اور ہمارے اس سائڈ پہ بھی کمر بھائی یہ دیکھیں، یہاں سے دور تک بھٹے ہی بھٹے دکھائی دیتے ہیں۔ دور کہیں دھواں بھی اٹھتا نظر آتا ہے، بالکل مزدور کی آہ کی طرح۔ جہاں پاؤں رکھ رہا تھا وہ دھستی جا رہی ہے۔ یار یہ ہے کیا؟ سر یہ بھٹا ہے جس کے نیچے اینٹیں نہیں گرم کرتے۔ اچھا اس کی چھت ہے یہ چھت ہے۔ اور یہ پکی ہوتی ہے؟ نہیں، پھر ہم کیوں اوپر کھڑے ہیں؟ نیچے ہو یار۔ جو ان کچی اینٹوں کو اپنے خون سے سینچتے ہیں، پکی اینٹوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ ہمارے محل نما گھروں میں پروئی جاتی ہیں یہ اینٹیں۔ یہ کچی اینٹیں ان کو اندر جوڑ کے ہیٹ دیتے ہیں، پھر پکاتے ہیں، ان کے ڈیزائن بنتے ہیں۔ ہم ان ڈیزائنوں پر ماشاءاللہ لکھواتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس مزدور نے اپنے خون سے ان اینٹوں کو سینچا ہے، اس کے بچوں کو دودھ کی بوتل بھی نصیب ہوئی یا نہیں۔ ہمارے محل نما گھروں پہ جو ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، ان ڈیزائنوں کی دھج بنانے کے لیے محنت کشوں کی جوانیاں جل جاتی ہیں ان بھٹیوں میں۔ جنڈیالہ شیر خان جانا ہے، پنجابی زبان کے شیکسپیئر کے درگاہ پر، 18ویں صدی کے عظیم ترین صوفی شاعر وارث شاہ۔ جنڈیالہ جاتے ہوئے آج بھی 18ویں صدی کے پنجاب کا عکس جھلکتا نظر آتا ہے۔ کہیں بھینسیں خرامہ خرامہ چلتی جا رہی ہیں ٹولیوں کی صورت میں۔ ان کا ہلڑ پن اور بے نیازی دیکھ کر رشک آتا ہے۔ میں نے کہا نا، گائے بھینسوں کا سڑک پر اٹھلاتے ہوئے چلنا پنجاب میں جگہ جگہ ملے گا۔ کوئی وقت تھا کہ پنجاب کی مٹیارنیں یوں چلا کرتی تھیں پگڈنڈیوں پر۔ بیڑیاں نے ہاں جی بیڑی کس طرح ہے ایک بیڑی؟ بیٹا نہیں ہے نہیں ویسے پوچھ رہے ہیں، میں کہڑے لے کے جاڑی گڈی سے رکھ۔ صحیح گل ہے، ویش بھی لینے آئے کے سامنے بیٹھا رن مارے۔ اچھا کنے دی ایک؟ مل جائے گی 1.5 دی یہ ٹکٹ مل جائے گی۔ اچھا صحت مند ہے گی؟ جی مہربانی۔ یار جنڈیالہ کدھر؟ جنڈیالہ 7 کلومیٹر۔ شکریہ۔ گرمی کی شدت سے نڈھال گنے کی رو دکھائی دی، حفظان صحت کے تمام اصولوں کو رو کی ٹھنڈک پر قربان کر دیا۔ واہ جو
ਉਧਰ ਨੈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ कितने पैसे बाबा जी? ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। लीजिए हम पहुंच गए वारिस शाह के मज़ार पर। महाकवि ते गुरु ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨ ਵਾਰਸ ਪਈਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਤਰਾਣ ਵਾਰਸ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਾਰ ਦਈਏ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਸ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਕੀ ਤੇਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਾਰਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਗਾਥਾਂ ਸਭਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵਾਰਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਲਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਵਾਰਸ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਰਸ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੜੀ ਸਰਲ ਜ਼ਬਾਨ ਉਤੇ ਸਭ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਰਸ ਰਚਨਾ ਹੀੜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮੀ ਉੱਚਾ ਮਕਾਨ ਵਾਰਸ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾ ਰਾਹ ਹੱਥ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਰਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨੂਰ ਤਾਈਂ बन के रहेगा तेरा दरबान वारिस। नूर मोहम्मद कपूरथलवी जैसा ट्रिब्यूट भी शायद ही किसी ने वारिस शाह को पेश किया हो। शेक्सपियर ब्लैंक वर्स में ट्रेजेडी लिखते थे, यानी मंजूम ड्रामा, अलमिया, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर। वारिस शाह ने हीर रांझा का किस्सा मंजूम ड्रामे के अंदाज में लिखा, कमाल कर दिया। इसमें कदम कदम तजस्सुस है, किरदारों का टकराव है, एक्शन है, एक्शन के नतीजे में हर लम्हा बदलती सूरत हाल है, क्लाइमैक्स है, एंटी क्लाइमैक्स है, साजिश है, चालबाजी है, फर्द का रिवायत से, एहसास का अक़दार से, जबर का जज्बात से टकराव है। शेक्सपियर के ड्रामों में यूनानी अलमिया के बरखिलाफ इंसान तकदीर के हाथों में खिलौना नहीं बल्कि खुद फैसले करता है अपनी फ्री विल से। वारिस शाह के यहाँ भी किरदार अपनी तकदीर के फैसले खुद करते हैं। ड्रामे में एक जगह सैती और जोगी उलझते हैं तो हंगामा अपने उरूज को पहुँचता है, लेकिन जब इंसानी फितरत का ये पहलू सामने आता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए हरीस है, तो वही सैती जो जोगी के लिए वबाल जान हो रही थी उसके कदमों में बिछी चली जाती है और उसी जोगी के साथ साजिश करके माँ बाप को जुल देती है। सैती मां नू आखदी नी माए किस वास्ते जी पतावनी है, नू लाल जही अंदर गती होई जान बुझ के दुख वधाउनी है। इज़राइल एक उम्र यार दूजी हीर चल के सस्ते आउंदी है, सैती नाल मैं चल के खेत वेखा पई अंदर उम्र वधाउंदी है। आप देखिए कैसे फनकाराना अंदाज से हीर का कांटा चिपो के सांप डसने का नाटक करना, खुद जाट का जोगी को लेकर आना, जोगी यानी रांझे का हीर के साथ कमरे में अकेले होने का चक्कर चलाना और कमाल होशियारी से एक कंवारी यानी सैती को साथ रखना। कहानी एक्शन से आगे बढ़ती है और एक्शन किरदारों के फैसलों से अमल में आता है और फैसले जज्बात के हैजान का नतीजा है। लेकिन हैजान शऊर पर गालिब नहीं आता, बल्कि यूं जैसे शेक्सपियर के किरदार सोचते समझते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, मंसूबाबंदी करते हैं। वारिस शाह के किरदार भी ऐसे ही है। वारिस शाह का कमाल ये है कि इसने चलती फिरती जिंदगी से मुतहर्रक किरदार लिए जिनके साथ आप जीते मरते हैं। यहाँ वो मॉडर्न ट्रेजेडी का नुमाइंदा नजर आता है। अरस्तू की ट्रेजेडी के तसव्वुरात के बिल्कुल बरअक्स। अरस्तू बड़े आदमी के साथ अलमिया दिखाने का कायल है, लेकिन वारिस शाह दो आशिकों और ख़ानदानों की कहानी से ट्रेजेडी बनता है। रिवायत और इज़्ज़त के तसव्वुरात से टकराते इनफरादी एहसास और इख्तियार को कमा हुक्कहू पेश करता है। कई आशिक भी आंदे ने, कई ऐसे भी आशिक दी मुरादा पूरी नहीं है जी। बेशक जी पाकां दे दर ते आके साढ़े दी मुरादा पूरीआं होंदियां ने। एक धागे धुगे ते काफी बने हुंदे, लाल रंग दा, पीले रंग दा, हरे रंग दा। धागे को बने हुंदे
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ इंशाल्लाह ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸलन अपना अपना अंदाज है। हीर वारिस शाह में किरदार एक सुस्त रफ्तार दास्तान के किरदार नहीं बल्कि ज़िंदगी के स्टेज पर जिंदा किरदारों की तरह चलते नजर आते हैं और हमारी ज़िंदगी की फ़ज़ा में सांस लेते मालूम होते हैं। हम में और उनमें कोई अजनबियत नहीं। 200 साल बाद भी वो किरदार पंजाब धरती के लिए उतने ही रेलेवेंट हैं। मकबल ने वारिस शाह से कुछ पहले हीर रांझे का किस्सा लिखा था और अगरचे दोनों के यहाँ अफसाने के अनासर बड़ी हद तक मिलते जुलते हैं, ताहम वारिस शाह के यहाँ जो ड्रामाई कैफियत है वो मकबल के यहाँ मफकूद है। हीर रांझा की ज़बान अफसानों की ज़बान की बजाय पंजाब की रोज़मर्रा की ज़बान है, जिनमें पंजाबियों के दिल सांस लेते महसूस होते हैं। उनके रसूम व रिवाज, उनके अक़ीदे, उनकी तबहम परस्ती, उनकी दोस्ती, दुश्मनी, बाहमी रक़ाबतें सब ज़िंदगी के स्टेज पर चलती फिरती नजर आती है। ज़बान में ऐसा लोच है कि पेचीदा से पेचीदा मसला भी शेरी तिलस्म बनकर सामने आता है। हीर आज भी हमारे यहाँ जुर्रत की अलामत है जो अपने पैदाशी हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकती है। लुडन मल्लाह कारोबारी जहनीत की निशानी है, जिसके यहाँ मज़हब का वास्ता कोई मायने नहीं रखता, जिसका दीन धर्म महज पैसा है और कुछ नहीं। पैसा खोल के हाथ जे धरे मेरे, गोदी चाड़ के पार उतारना। एक बाज तो काग ने कूंज खोई, वेखा चुप है के गुरलाम दाई, दुखा वालियां गल्लां सुखनियां किसे जोड़ जहान सुनावंदा भाई भाभियां कबीले बरादरियां सब अपनी गर्ज के जाल में असीर हैं। बख्तावर और मालदार सब के सब दोस्त हैं, साथी हैं, संगी हैं। कमज़ोर और नातवा का साथ कोई नहीं देता। काजी इंसाफ नहीं ताकत का गुलाम है। मुल्ला रियाकारी की तस्वीर बनता है जो हलवों की खुशबू पर मरता है। रिश्वतें लेकर फतवे देता है। ज़बरदस्ती रज़ा और रग़बत के बग़ैर निकाह पढ़ाता है। वारिस शाह की ज़बान में मुल्लाओं को झगड़े की पंड कहा गया है, जो दाढ़ी रखते हैं लेकिन शैतानी अमल करते हैं। वारिस शाह मियाँ पंड झगड़ियाँ दी, पिछो मुल्ला मसीद दा आया है। हीर के माँ बाप भी इसी जागीरदारी समाज के पुरजे हैं। सियाल सरदारों को सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि हीर ने एक मुलाजिम के साथ दोस्ती क्यों की। नशर होई एक गल विच जंग सारे, हीर दोस्ती चाक दे नाल लाई। भाइयों को भी ऐसा ही एतराज़ है कि मही चार के वड्या नक साडा। मही यानी भैंस चराने वाले ने हमारी इज्जत उछाली। काजी की नसीहत की तान इसी नुक्ते पर आकर टूटती है कि चाक चोरा नाल न गल कीते, ये मेहनती केड़े थां देने। चूचक सियाल होनी हीर जाननी है, सरदार ने 5 गरां देने। तेनू मैना चाक दा दे कह दो, उस पर्रे विच शोर मचाया है। वारिस शाह के फ़न का एजाज़ है कि उसे आवाम ने अपने सीनों में महफूज किया। हत्ता कि हिदायतुल्लाह, पीरा दत्ता, महबूब आलम, अशरफ अली गिलानवी, मुंशी ताजदीन, बहुत से शोरा के सैकड़ों हीरे छपी हैं, लेकिन वारिस शाह का अवामी किरदार आज भी लैंदे और चढ़दे दोनों पंजाबों में यकसा तौर पर मकबूल है। क्या मुशाहिदा है, क्या जुज़ियात हैं, क्या तफसीलात हैं, क्या मंजूम ड्रामा है। पंज पीर, करबल के गाजी, हिंद पंजाब के तारीखी किरदार, बादशाहियों की शिकस्त रेख्त, कदरों की पामाली, कंधारियों और धाड़ियों के कटक, दिलों की लूट खसूट, जोग बैराग नाथ पंथी के मसाइल, हिंदी, आर्याई और ईरानी तहजीब का हसीन इम्तजाज, फिर पंजाब की अपनी बुबास, यहाँ के दरख्त, घोड़े, भैंसें, झल बेले, गहने पाते, सांप,
क्या क्या तफसील मौजूद है एक ड्रामे में। किरदारों की अपनी मखसूस ज़बान है। जहाँ हिजरो फिराक के नोहे हैं वहाँ मजलिसबाजी, शोखी, चंचलता, सहेलियों की छेड़छाड़, अगर हर लहजा हर मिजाज की अक्कासी है। इश्क पीर आशकां सारियां दा ते शैतान है पीर मरासियां दा, सोटा पीर विगड़ियां तिगड़ियां दा, भुख पीर भुखियां प्यासियां दा। क्या मंजर कशी करते हैं वारिस शाह, खूबसूरत दिलावेज मंजर कशी। पंजाब के देहात में कैसे सुबह होती है, चिड़ियाँ कैसे चहचहाती हैं, कैसे दूध में मधानियाँ पड़ती हैं, राही अपना रास्ता लेते हैं। वारिस शाह की मंजर निगारी देखिए। चिड़ी चोक दी नाल जां तेरे पांदी, पईयां दुध दे विच मधानियां ने, उठ उसल दे वास्ते जां दौड़े, सेजा रात नूं जिन्हां ने मानियां ने। वारिस शाह की डिस्क्रिप्शन का कोई सानी नहीं। हीर का सरापा बयान करते हैं तो हुस्न को कारी की आंखों में उतार देते। नैन नरगसी मर्ग मोलड़े दे, गल्लां टहकियां फुल गुलाब दा जी, भावां वांग कमान लाहौर दसन, कोई हुस्न न अंत हसाब दा जी। सुरमा नैना दी धार विच भभरिया, चढ़िया हिंद ते कटक पंजाब दा जी। खुली तरंजना विच लटक दिए, हाथी मस्त जिमें फिरे नवाब दा जी। होंठ सुर्ख याकूत जिमें लाल चमकण, ठोडी से वलैतां सार विचों। निक अलिफ हुसैनी दा पिपला सी, जुल्फ नाग खजाने दी बार विचों। दंद चंबे दी लड़ी के हस मोती, दाने निकले हुसन अनार विचों। लिखी चीन कश्मीर तस्वीर जटी, कद सरू बहिश्त गुलजार विचों। गर्दन कूंज दी उंगलां रवां फुलें, हथ को लड़े बर्ग चनार विचों। यानी हीर के हुस्न जमाल की तारीफ भला कौन कर सकता है। उसकी पेशानी पर पूरे चांद का हुस्न चमकता है। उसकी आंखें नरगिस के फूल से मुशाबे मस्त और मतवाली हैं। हिरन की जैसी आंखों या फिर ममोलड़े के जिस्म पर मौजूद दागों जैसी। उसके रुखसार गुलाब के खिले हुए फूल जैसे हैं। उसके अब्रू लाहौर की बनी हुई कमान जैसे नजर आते हैं। उसके हुस्न का कोई शुमार नहीं। उसकी आंखों के कोनों से काजल यूं लगता है जैसे पंजाब के लश्कर ने हिंद पर हमला कर दिया। वो किसी नवाब के मस्त हाथी की तरह झूमती हुई औरतों की मजलिस में जाती है। उसके होंठ सुर्ख याकूत की तरह चमकते हुए लाल जैसे हैं। उसकी ठोड़ी वलायती सेबों जैसी है। उसकी जुल्फें खजाने पर बैठे हुए सांप की तरह हैं जो हिफाजत के लिए दरवाजे पर मामूर होता है। उसके दांत चंपा के फूलों की पत्तियों जैसे और उनकी चमक मोतियों जैसी है। हीर चीनी और कश्मीरियों की बनाई हुई तस्वीरों जैसी है, जिसका कदो कामत बाग़ बहिश्त में खड़े हुए दरख्तों जैसा है। और उसकी सुराहीदार गर्दन कूंज जैसी लंबी और हाथों की उंगलियां लोबिया के फलियों जैसी हैं। उसके हाथ चनार के पत्तों जैसे नाजुक हैं। ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਵਾਂਗ ਤਸਲੀਏ वारस शाह बेलकार ज़िबा करिए बोल लाल ज़बान रसीए वारिस शाह का इल्म मौसीकी औजे कमाल पर था। आप हीर वारिस शाह बढ़िए आधे मौसीकार बन जाएंगे। 30 राग और उनकी इस्तिलाहात और ताले, एक खजाना छुपा है हीर वारिस शाह। मालकोंस, डोल, भेम पलासी, सारंग, सोही, सूरट, गुजरी, पूर्वी, ललित, भेरू, दीपक, मल्हार, मेघ मल्हार, टोडी, भाग, धनासरी, जेस्तरी,
मालसरी, बसंत, रामकली, मारवा, कानड़ा, कलियान, झंझोटी, पहाड़ी, मकली, कौन सा राग है जो डिस्कस नहीं किया वारिस शाह ने। इन गीतों और तालों के नाम भी हमें इन अशार में दिखाई देते हैं, मसलन मंगला, गोपी, मंदावनी, हुरी और एक तुरपद। वारिस शाह को इल्म मौसीकी से अच्छी खासी रग़बत थी, वाक़फ़ियत थी। उन्ना उच्चियां तो मैं जिन्ना नीवियां नाल निभाई ते सदा ना बागी बुलबुल बोले ते सदा ना बाग बहारा सदा ना मापे हुस्न जवानी ते सदा ना सोबत यारा ते सीखां उते मक्खन पकाना ते डाडायो। संस्कृत और हिंदी सीखने के लिए आपने जवानी में मद्रास का सफ़र किया और वहाँ से पंडित विश्वनाथ से कस्ब फैज़ किया। फिर हिंदुओं की मुक़द्दस किताब रामायण और दीगर वेदों का भी मुताला था। मंजिल ब मंजिल सफ़र करते हुए आप टिला बालनाथ भी जा पहुँचे और वहाँ गोरखनाथ के 26वीं गद्दी नशीन तीर्थनाथ से मुलाकात की थी। टिल्ला में अक़ामत का दौरान आपने जोगियों और उनके चेलों के रहन सहन, रसूम व रवाज, नाथ पंथ और योग पंथ के रमूज से आगाही हासिल की। बहुत घूमे, बहुत कस्बे फैज़ किया। हीर रांझा उस सारे सफ़र का, सारी इंटेलेक्ट का, सारे जमालियाती शऊर का बेपाया इजहार है। हालांकि राबिंद्रनाथ टैगोर जब 1934 में लाहौर आए और धनी राम भल्ले के घर पर ठहरे तो उनके तफन्ने तबाह के लिए हीर वारिस शाह पेश की गई। वो झूम उठे, कहा ऐसा लगता है जैसे किसी अजीम व बसीत सहरा में कोई ज़ख्मी फरिश्ता सिसकियाँ भर रहा हो। मैं वादा करता हूँ कि 14वीं की रात जब यहाँ मेला लगेगा तो आपको ज़रूर लेकर आऊँगा, विज़िट करवाऊँगा वीडियो के थ्रू। आप हमारे साथ रहिए, अपने कमेंट कीजिए। मेरे पंजाबी शेर पढ़ने में अगर कोई लग़ज़िश है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। ये मेरी नालायकी है कि मैं एक पंजाबी होते हुए पंजाबी शायरी में शायद वो दरक नहीं रखता जो उर्दू शायरी में रखता हूँ, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे हर हाल में कबूल करते हैं।